Namaskar students. Today we are going to start chapter 2 Polynomial exercise 2.1 introduction. We have studied in the ninth class polynomial in one variable. Right? We all study in the ninth class. Right? What is the polynomial? The meaning of the polynomial is many terms. Poly means many, nomial means term, that is many terms. A naught plus a1 x, a2 x square, a3 x cube, as so on, an x n, where an is not equal to 0 or n is a whole number. N is a whole number. We studied that this is the general equation of general form of polynomial. Right? That means x is the variable. X is the variable. A1, A2, A3, so on. An are the coefficients. We know that, or A naught is the constant. A naught is the constant term. Right? Or n is the whole number. N is the, we can say that is the power. Otherwise, we can say that the degree. Right? If I take the same example like x to power 2 plus x plus 1. This is a polynomial, no? Yes, this is a polynomial. Right? If I take minus cube plus x, here this is not a whole number. This is not a whole number. So it is not a polynomial. We study the square root. We study square root. What is the square root? It's like root x. You can write in the form 1 by 2. If I write 1 by 2 plus x plus 1, x square plus 1, this is the fraction. So it is also not a polynomial. Right? Polynomial. What are the conditions of polynomial? The power must be a whole number. Power must be a whole number. It cannot be never. It never be a minus 3. For polynomial, the n must be a whole number. Its power and the degree. It can be never be a negative n in fraction. Right? So it is defined by two types. One is the term, or second is the degree. When one term is present, so we said mononomial. That means x, it can be y, it can be z, it can be any constant. 1, 2. In this, it doesn't mean about the degree. The degree can be 100. But we just think about the term. If there is only one term, so we said that is a mononomial. We not consider any degree here. The degree can be 100, degree can be 20, whatever. When two term is present, the name is a binomial. Binomial, here this is x plus y, x plus a, x plus 1, whatever. Three terms are present, then we call the trinomial. Then we call it the trinomial. There will be x plus y plus 1
x plus 2x square plus 1. It can be anything, but it must be as there are 3 terms. When 2 terms present, there will be a 2 term. We do not consider any degree, any power of the variable. When we talk about the degree, so that means we are talking about the power. The definition we can say that the highest power of variable is called degree. Right? When the degree is 1, when power is 1, we set is the linear equation, linear polynomial. That is a linear polynomial. That is ax plus b. Right? This is the general form of the polynomial. We can write x plus 1. That means the power of the variable is 1. The power of the variable is 1. It can be a x, it can be a y. Right? Or when power is 2, we will call it the quadratic. That is a quadratic polynomial. So it is a quadratic polynomial. That means the highest power is 2. This is the general form of polynomial. We can write x square plus 1, x square plus x. Right? In here, we did not consider any the term. We just consider the power of the variable. The variable power is 2. That means the quadratic. When the variable power is 1, that is the linear. When we talk about the 3, it's called the cubic. In our syllabus, we have to study about the power 3. In our syllabus is the 2 degree and 1 degree, 2 degree and 3 degree polynomials. 3x plus bx square plus cx plus cb. These are the type of the polynomial. One is the term, second is the degree. In the term, we just consider the number of the terms in the present. In the degree, we just consider the power of the variable. Next topic is the zeros of the polynomial. We also study in the 9th class. What do you mean by the zeros? Zeros is that the value of x at which polynomial becomes 0. What is the meaning of the zeros? The value of the x at which polynomial becomes 0. I can take the example like px is equal to x plus 2. Now we have to find the value of polynomial, value of the x where the polynomial becomes the 0. So for example, we take x plus 2 equal to 0. So x is minus 2. At the value of x is equal to minus 2, this polynomial becomes 0. For example, when we put x is equal to minus 2, x to minus 2 plus 2 equal to 0. The polynomial becomes 0 when x is minus 2. So that means minus 2 is the 0 of polynomial. This is the 0 of the polynomial. X is equal to minus 2. If I take another example, px is equal to 5x plus 3. What do we get? We have to find the value of the 0. So where x plus 3 we put equal to 0. X equal to plus 3. Take from left right hand side, it will be minus or 5 in the divided. We get x is equal to minus 3 by 5. And x is equal to minus 3 by 5. Polynomial becomes 0. So basically the meaning of the polynomial, the value of x at which the polynomial becomes 0. कि x की किसी भी वैल्यू के लिए
जो मेरा पॉलिनोमियल है, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाता है। जो हमारी पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। That is, the px is equal to 5x plus 3. When 5x plus 3 is equal to 0, x equal to minus 3 by 5. This is the algebraic method to find the zeros of polynomial. Right? This is the algebraic method. In 10th class we have geometrical meaning of the zeros of polynomial. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि जो पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है वो हम अलजेब्रिक मेथड में पढ़ रहे थे। अब इस अलजेब्रिक मेथड को हमने जियोमेट्रिकल मीनिंग में बताना है, मतलब कि अब इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना है कि पॉलिनोमियल जीरोस को हम जियोमेट्रिकली कैसे स्टडी कर सकते हैं। और हम सब ने स्ट्रेट लाइन, हमने ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखा था भाई, है ना? हमने 9th क्लास में ग्राफ, स्टैटिक ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। तो मैंने एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल px पॉलिनोमियल ले ली, x plus 1, take the coordinates of the polynomial x और y, या x और px, this is the px। जब x को हमने 0 पुट करा तो मुझे px मिला 1, जब मैंने x को -1 पुट करा तो मुझे मिला 0। तो जो ये मेरा px है वो y की तरह ट्रीट कर रहा है। हमारे पास जो px है वो किस तरह ट्रीट कर रहा है? y की तरह ट्रीट कर रहा है। हमने जो ग्राफ पढ़ा था ये क्या था? x एक्सिस था, और इसे क्या बोलते हैं? y एक्सिस बोलते हैं, राइट? अब इसको हम y एक्सिस ना बोल के क्या बोलेंगे? px। क्या बोलेंगे? px। दिस इज 0 origin 1 2 3 4 5 6, this is a -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, right? When x is 0 px is 1। जब x 0 है तो px कितना है मेरे पास? ये आ गया 1। x 0 px is 1, और जब मेरे पास x -1 है तो px 0। तो मतलब कि ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को यहाँ लिखना हूँ 0 0, ये आ गया मेरे पास -1 और 0, राइट? अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास क्या x एक्सिस, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या मेरे पास px। तो एज इट इज ये मेरे पास x है और ये क्या है मेरे पास px। ये अदर हैंड वी से दैट दिस इज अ y। ड्रॉ द लाइन, दिस, राइट? अब देखो जो ये मेरे पास पॉइंट है x वाला, ये पॉइंट है पॉइंट a, इसे पॉइंट b बोल देता हूं। जो मेरा पॉइंट a है वो क्या है? -1 और 0, और मैं अब इसकी पॉलिनोमियल की क्या निकालता हूँ? 0 निकालता हूँ। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की 0 निकालता हूँ, px इक्वल टू x प्लस 1, px को 0 होना पड़ेगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। कि मेरे पास x क्या है? -1, और px को क्या होना पड़ेगा? 0, तो दैट मींस मेरे पास -1 और 0 आ गया, और यहाँ पे भी मेरे को -1 और 0 मिल रहा है। इसे हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पास जियोमेट्रिकली मीनिंग होता है -1 0, और ग्राफिकल में जो x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो सेम होते हैं जो x एक्सिस की कोऑर्डिनेट हो गए, और जो मेरे अलजेब्रिक में कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे, वो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये the zero of
px, that is a polynomial, is represented in geometric, you can say that x-axis coordinate, where the graph cut x-axis, right, like x equal to minus 1. In this we can see that at x equal to minus 1, the straight line cut the x-axis is on x equal to minus 1. So x minus 1 is the zero of the polynomial. In graph we can represent it by the x coordinate. मतलब कि जो x का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोल देंगे कि वो मेरे पोलिनोमियल की क्या है, जीरो है, और पोलिनोमियल में निकालने के लिए इक्वल टू जीरो करके और उसकी कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। अब मैं आपको एक नोट बताने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल के ऊपर। अब पॉलिनोमियल px ओवर डिग्री n ग्राफ ऑफ द y, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, वो इक्वल होगी द px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट एंड पॉइंट्स। मतलब कि एक पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि इसके मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे और मिनिमम जीरोस इसके 0 होंगे। हम टॉक अबाउट द, हम उसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2, राइट। अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, इसके मैक्सिमम जीरोस भी 1 होंगे और इसके मिनिमम जीरो भी कितने होंगे, 1 होंगे। अब हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं लेके चल रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ x + 2, राइट। इसकी जीरो निकालो तो इसकी जीरो कितने आएंगे, इसके जीरो आएंगे -2 और इसके जीरो कितने हैं, ओनली 1 है। तो दैट मींस इसके मैक्सिमम भी 0 1 होंगे और मिनिमम भी जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। तो हमें यही प्रॉपर्टी हमें लिखी है कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही, उसके एट मोस्ट उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसके पॉलिनोमियल भी कितने होंगे और इसकी जीरोस की कितनी होगी, 1। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ तो ये कितनी है, x² + 2x + 1। अगर मैं ये लिखे चलता हूँ तो अब देखो ये है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, ये मेरे पास आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है, ये मेरे पास आइडेंटिटी है 1x + 1 के होल स्क्वायर की। तो इसको लिख सकता हूँ मैं x + 1 और x + 1, तो दैट मींस इक्वल टू 0 करूँ। अगर मैं इसकी जीरो से निकालने हैं मुझे, तो यहाँ से मुझे जीरो कितने मिल गए, -1 और -1। तो इसकी जीरो कितने आ गए, इसके जीरो आ गए 2। अगर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरो आएंगे, 2। अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसके जीरो कितने आएंगे, 1। अभी मैंने बोला कि इसकी मैक्सिमम जीरो आएंगे 2 और मिनिमम जीरो आएंगे 0। तो अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे पास एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, और y², अगर मैं बोल दूं कि जो मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वो कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसमें y² = 4, तो जो इसकी फिगर बनेगी वो ऐसे बनेगी, राइट। तो जो मेरी फिगर बन रही है वो ऐसे बनी, तो ये हमारे x एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं कर रही है। तो दैट मींस इसकी जीरो कितनी हो जाएगी, मिनिमम जीरो कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम जीरो हो सकती है इसकी 2। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे, अगर एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n है तो उसकी एटमोस्ट जीरो कितनी होंगी, n होंगी, वो n पॉइंट्स पे कट करेगी। तो देयरफॉर द पॉलिनोमियल का डिग्री हैज द एटमोस्ट n0, और जितने भी पॉइंट्स पे वो कट करेगी उतनी उसकी 0 हो जाएगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये इनको x - 2 में कट करेगा, तो इसकी जीरो कितनी आ गई, 1 आ गई, राइट। द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ px, द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द पॉइंट्स एट द ग्राफ कट द इंटरसेक्ट द वेयर कट द x एक्सिस।
ये हमारी PS की जीरो उतनी ही होगी जितनी हमारे पास उसको वो कट करेगी। नाउ हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो मेरे पास पॉलिनोमियल है वो px को इक्वल है y के और हमें फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस निकालने हैं। और हमने नोट क्या पढ़ा था? हमने जो नोट पढ़ा था वो ये था कि नंबर ऑफ zeros of px is equal to the number of intersect at x-axis. The number of the intersecting at x-axis by the graph. राइट, इसका मतलब क्या कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल के उतने होंगे जितना हमारा ग्राफ एक एक्स एक्सिस को कट करेगा। राइट, हमने जो फिगर फर्स्ट ली है उसमें क्या है, ये मेरे पास y एक्सिस और ये मेरे पास x एक्सिस। ये मेरे पास एक लीनियर ग्राफ है और जो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो इसकी जीरोस कितनी हो जाएंगी? इसकी जीरोस हो जाएंगी 0, क्योंकि ये किसी को भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो ये y को कट कर रहा है और एक x को कट कर रहा है, मगर हमारे पास क्या है कि हमें तो चेक करना है जो x एक्सिस को कट करे और ये x एक्सिस को एक वन टाइम कट कर रहा है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 1। और यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है? ये 1 2 3। x एक्सिस को 0 हमारे 3 बार कट कर रहा है तो इसकी जीरोस कितनी हो जाएंगी? 3। और इसकी 0 ये भी 2 बार कट कर रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगी 2 और यहाँ पे 1 2 3 4 और 0 को ये x एक्सिस को 4 टाइम कट कर रहा है तो इसकी जीरोस कितनी हो जाएंगी? 4। बेसिकली जो हमारे पास ग्राफ की थ्रू या ज्योमेट्री के थ्रू अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जस्ट चेक करेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, उतने टाइम्स ही हमारे पास जीरोस होंगी। ये चीज को आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। डू योर सेल्फ और वीडियो को रोक के आप अपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना।